Good morning to all of you. I hope you all have done the questions which we did in previous class. We did 11.1 first question. Rest of the questions are omitted from the syllabus for the session. And 11.2 we did 4 questions, but here Lakshay demanded that fourth question should be explained once again. So I'm starting with the fourth question. Fifth was done. So today we will do sixth and seventh question after doing fourth question. So let's see what was the fourth question. In this question, we had to draw the tangents to a circle, and the radius of the circle was given to us 5 centimeter. Draw tangents to a circle of radius 5 centimeter, which are inclined to each other at an angle of 60 degree. Now in this question, you are not given the external point from where we have to draw the tangents. You are given that you have to draw a circle of radius 5 centimeter. So first of all, you have to open your compass 5 centimeter. You have to keep the tip at a point, and then you have to draw the circle of radius 5 centimeter, right? In this question, this is the center, and we have to draw the tangents to this circle, which are inclined to each other at an angle of 60 degree. Okay. So in 10th chapter, we did a result that if we have two tangents to a circle and some angle of inclination is there, like this is x, and this angle is y, which is between the two radii, which are coming from the point of contact. In this case, these two angles will be supplementary. There some will be 180 degree. How? Because in this case, this is point of contact, so this angle will be 90 degree. This is point of contact, so this will be 90 degree, right? And quadrilateral, so sum of all 4 angles of the quadrilateral is 360 degree. Out of 360, ये दो तो आपके 180 हो गए. And for this question, you are given that tangents are inclined to each other at an angle of 60 degree, right? So what will be the value of y? That we will find out by subtracting this angle from 180 degree, because their sum is 180, their sum will also be 180 degree. So 180 में से आप इसे minus करेंगे, you will get the angle at the center. So in this question, you will get y is equal to 120 degree by subtracting 60 from 180 degree, right? After doing the subtraction, now we have to draw the construction. We have to do the construction. इसमें अब आपने tangents draw करनी है, बिल्कुल इसी को follow करेंगे. First of all, we must have a radius. So I am drawing the radius है, ठीक है. 5 सेंटीमीटर की आपकी रेडियस है, आप पहले रेडियस ड्रॉ कर लो, फिर सर्कल ड्रॉ करो. इट्स योर चॉइस. 5 सेंटीमीटर. आफ्टर दैट आप इसको देखते हुए चलेंगे. आपने ये ड्रॉ कर दी, ठीक है. ओ, लेट दिस इज ए, दिस इज पी एंड दिस इज बी. आपने ये ड्रॉ कर ली. आफ्टर दैट व्हाट इज गिवन टू यू? यू आर गिवन दिस एंगल. इसके बाद आप क्या कर सकते हो? इसको देखते हुए उसमें क्या कर सकते हैं? यू कैन ड्रॉ दिस एंगल, ठीक है. तो ए पॉइंट पर आप क्या करेंगे? यू विल ड्रॉ द एंगल ऑफ 90 डिग्री एट दिस पॉइंट. सो यू कैन यूज योर कंपास एज वेल एज योर डी, ठीक है. आपने 60 डिग्री, 120 और 120 से एक बैक आर्क लगाई, एंड देन यू विल गेट द एंगल बिटवीन 60 एंड 120 टू बी इक्वल टू 90 डिग्री, राइट. उसके बाद ये हो गया आपका, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है, बट 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के लिए वी मस्ट हैव पॉइंट पी. ये तो पूरी लाइन है, इसके ऊपर पी पॉइंट में अपनी चॉइस से कहीं भी नहीं ले सकती, राइट. क्योंकि कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं, यू मस्ट हैव फिक्स्ड पॉइंट वेयर यू आर कीपिंग योर कंपास. 60 डिग्री एंगल बनाने के लिए आपको अपनी कंपास कहीं रखनी पड़ेगी. वो कहाँ रखें? आई डोंट हैव पॉइंट पी, ठीक है. तो मुझे इसको आइडिया को स्किप करना पड़ेगा. आई विल हैव टू चूज समथिंग एल्स. मुझे यहाँ जाना पड़ेगा. मेरे पास अब ये पॉइंट है, यहाँ पर मैं 90 बना चुकी, यहाँ मेरे पास पॉइंट ही नहीं है. आई जस्ट हैव पॉइंट O. सो एट पॉइंट O, व्हाट इज द एंगल? Y. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Y? 120 डिग्री. सो एट पॉइंट O यू विल ड्रॉ द एंगल ऑफ 120 डिग्री. पहले आप यहाँ से 60 की आर्क, फिर 120 की आर्क लगाएंगे, ठीक है. ये आपका पॉइंट 120 डिग्री का हो गया. नाउ यू गॉट पॉइंट B, ठीक है. उसके बाद पॉइंट B आ चुका है. अब आपके पास B पर कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री. सो लेट मी ड्रॉ 90 डिग्री एंगल है. ये आपकी आर्क,
बी पॉइंट पर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। यहाँ से 60, 120 और 60 और 120 के बीच में आपका क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। जॉइन द पॉइंट्स, और ये जो आपकी दो टेंजेंट्स ड्रॉ हुई हैं, ये दो टेंजेंट्स जिस पॉइंट पर कट करेंगी, लेट वी टेक द पॉइंट एज पी एंड दिस एंगल विल ऑटोमेटिकली बी 60 डिग्री। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपका ऑलरेडी ऑटोमेटिकली एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ये एंगल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस एंगल फ्रॉम 180 डिग्री, राइट। सो ये क्वेश्चन आपको बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसमें आपका सिर्फ एंगल चेंज होके आ सकता है, हो सकता है ये एंगल 120 डिग्री दे दे। तो एक बार लास्ट ईयर का क्वेश्चन दिया था मैंने एग्जाम में, and in that question I gave this angle to be 120 degree, और बच्चों ने वही मिस्टेक कर दी थी, बुक वाला लर्न था and they made 120 degree here. If you are taking this 120 degree, what will be the angle here? What the angle will be taken here? 60. Yes, in that case supplementary angle you will have to take, that will be 60 degree. Okay, fifth question nothing is there that you will do. I am coming on sixth question. सिक्स क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। व्हाट यू हैव टू डू, आपने उसको रीड करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन आपको बोलता जाए, जस्ट लाइक दैट यू हैव टू डू। 3 इसके पार्ट्स हैं, वो 3 पार्ट्स आपने कर रहे हैं, 3, 4 पार्ट्स हैं, राइट। हर पार्ट में एक एक कंस्ट्रक्शन करनी है। लेट वी कम ऑन द फर्स्ट पार्ट। लेट ABC बी अ राइट ट्रायंगल इन विच AB is 6 centimeter, BC is 8 centimeter and angle B is given to you 90 degree। फटाफट से एक रफ से फिगर अपने जो भी आप नोटबुक लेके बैठे हैं उसमें ड्रॉ कर दीजिए कि कैसे कैसे बनेगा। हो जाए तो बता देना। इस तरह के क्वेश्चंस हमने 8th क्लास में किए हैं, 7th क्लास। यस, क्या लाइन ली सबसे पहले? किसी ने ए बी ली, BC ली होगी, सबसे पहले BC ली थी। हाँ, आई एम टेकिंग, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं ए बी ले रही हूँ यहाँ पे। ए बी आई एम टेकिंग बी हेयर, ए हेयर, क्योंकि जनरली बच्चों की आदत होती है दैट दे प्रेफर टू मेक द एंगल ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लाइन, क्योंकि जब हम एंगल्स बनाने सीखते हैं तो हम लेफ्ट साइड पे ही सीख लेते हैं। अदरवाइज इफ यू कैन ड्रॉ ऑन राइट साइड, इट्स योर चॉइस। ठीक है, सिर्फ आपने एंगल ड्रॉ करना है। At point B, we have to draw the angle of 90 degree. This AB is 6 centimeter. At point B, we will draw the angle 90 degree. यहाँ से आपने जितनी 1, 2, थोड़ा सा हो गया, ये आपके 60, इधर 120 जाएगी और इस पॉइंट से फिर आप A लगाएंगे, then you will get the angle to be 90 degree. ठीक है, ये हुआ आपका 90 डिग्री एंगल ड्रॉ, राइट। उसके बाद अपने ट्रायंगल कंप्लीट करना है, बट अभी ट्रायंगल कंप्लीट नहीं हुआ है। आई डोंट हैव सी, अब क्या करूं, क्या करूं बताओ जल्दी। मैम BC 8 सेंटीमीटर है तो उसको 8 सेंटीमीटर पे कट करते हैं। यस, 8 सेंटीमीटर का आर्क है BC, तो आप अपनी कंपास 8 सेंटीमीटर खोल लेंगे। You will keep your compass at B and draw an arc of 8 centimeter, right? You will get the point of intersection of the arc and the line to be C, and now you have to join A to C. ठीक है, ये हुआ आपका एक पार्ट। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। BD is perpendicular from B on AC. BD is perpendicular from B on AC. AC के ऊपर perpendicular from point B, राइट। बी पॉइंट से AC के ऊपर 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना एंड द पॉइंट विल बी D। अब एक बात ये बताओ कि एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट से परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं? एक लाइन से एक पॉइंट के ऊपर, आई हैव दिस लाइन, आई हैव दिस पॉइंट, मुझे इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मैं कैसे करूंगी? हम कंस्ट्रक्शन चैप्टर कर रहे हैं, सो मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने मैम एक पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे इसी के साथ में, पैरेलल बी पॉइंट से पास करती हुई। कैसे कैसे लोगे बेटा पैरेलल लाइन? पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे।
पैरेलल कैसे लोगे, पैरेलल हम लाइन एक ही कैसे चीज लोगे? पैरेलल बी पॉइंट से कंस्ट्रक्ट कर लेंगे ना, बाय कंस्ट्रक्शन। कैसे कैसे कंस्ट्रक्शन ही तो पूछ रही हूँ, कैसे करेंगे? यहाँ पे स्केल रखो और इसके पैरेलल ड्रॉ कर दो, ये कह रहे हो? बी पॉइंट से पास करेंगे वो। बेटा देखो, जब तक हम करते हैं अपना थ्योरम्स वाले चैप्टर, थ्योरम्स वाले चैप्टर में ना हम कुछ भी कह सकते हैं कि हमने इस पॉइंट से ये इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी, यहाँ पे ये 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया, हमने इतने इसको इतना एक्सटेंड किया और इतना एक्सटेंड किया और हमारा काम हो गया। कंस्ट्रक्शन जब हम थ्योरम्स वाले चैप्टर में लिखते हैं ना कंस्ट्रक्शन, वहां पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हम एक्यूरेसी की बात करते हैं। ज्योमेट्री का मतलब है हम कुछ भी बिना मेजरमेंट के कर ही नहीं सकते, ठीक है। इफ आई एम सेइंग बी से पास होती है, मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा वो एग्जैक्टली इसके पैरेलल है? हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमने स्केल रख दिया, जहां हमें पैरेलल नजर आई वो हमने कर दिया। तो अब हमें नजर आने वाला काम नहीं करना है, वी हैव टू डू एवरीथिंग विद प्रॉपर एक्यूरेसी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बेटा आपने किया होगा 6th-7th में ही कर रखा है, 6 में था आई थिंक। किसी एक पॉइंट पर एक लाइन के ऊपर, फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए मैं आपका, क्योंकि आर्क दिखानी मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, सो आई एम टेकिंग द लाइन टू बी लाइक दिस, और मैं ये पॉइंट ले रही हूँ, मुझे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इसको थोड़ा पास ले लेते हो, ठीक है। आपने क्या करना है, फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से आपने अपनी कंपास खोलनी है इससे ज्यादा, इस लाइन से ज्यादा दूर, ठीक है। एंड देन यू हैव टू ड्रॉ एन आर्क, ठीक है। ये आपने लगा दी आर्क, इस पॉइंट पे रखी, कंपास इससे ज्यादा खोली, एंड यू हैव टेकन एन आर्क, ठीक है। ये आर्क लेने के बाद अब आपके पास ये 2 पॉइंट्स आ चुके हैं, राइट। From these 2 points, now we have to open our compass more than half of this arc. यहाँ पर रखेंगे, इसके आधे से ज्यादा खोलेंगे, एक आर्क इधर से और एक आर्क इस पॉइंट से। Let this is P and this is Q. ध्यान से सुनना। अब हमने एक आर्क Q से लगाई है और एक आर्क लगाई है हमने P से आधे से ज्यादा खोल के, ठीक है। Now if you join this point B to this point of intersection of these two arcs, this will be perpendicular. एक लाइन से, जब आप एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करना है, ये लाइन, ये पॉइंट, इस पॉइंट से आप इससे ज्यादा खोलेंगे अपनी कंपास, लाइन से ज्यादा, और एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। और आपके पास 2 पॉइंट्स आ चुके। अगर आपके पास ये लाइन छोटी भी हो ना, सपोज आपके पास ये लाइन है, ये पॉइंट है और ये लाइन है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। आप कह रहे हो कि इसने ज्यादा खोली आपने और ये आर्क लगा दी, ठीक है। ये आर्क आपकी आ गई, अब ये पॉइंट तो आपको मिल गया, यहाँ से आप आधे से ज्यादा खोलोगे, यहाँ से रख के आधे से ज्यादा खोल के आपने एक आर्क लगा दी। अब दूसरी आर्क कहाँ से लगाएं, क्योंकि यहाँ पे तो पॉइंट है ही नहीं हमारे पास, ये आर्क अलग से आ रही है, लाइन अलग है, बोथ आर सेपरेट, सो दूसरी आर्क कहाँ से लगाएंगे, कहाँ से लगाएंगे? हम अपनी तरफ से कोई पॉइंट नहीं ले सकते। मैम उस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। यस, वी विल हैव टू एक्सटेंड द लाइन। मेरी लाइन यहाँ तक ही है, अब मुझे इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ विद द सेम ओपनिंग, जितनी आपने यहाँ ओपन की थी उतनी ही यहाँ से करके आपने ये आर्क लगाई, ठीक है। अब आप जब इस पॉइंट को जो आपने लिया था, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करोगे तो ये इसके ऊपर ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया दैट हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट? आ गया सबको? हाँ। सिर्फ 2 बच्चों को यस आती है ना? यस मैम। यू कैन राइट। चलिए, फ्रॉम पॉइंट बी, अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम पॉइंट बी वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बी डी ऑन ए सी। बन जाएगा? यस। कैसे? हम बी पे कंपास रखे, ए से थोड़ा ज्यादा कम खोलेंगे, उसके बाद एक यस, आप अपनी कंपास बी पे रखेंगे, इस लाइन से आगे तक खोल लेंगे, यहाँ से आपने इससे ज्यादा तक खोल ली और एक आर्क लगा दी, ठीक है। यहाँ से आपने ये आर्क लगाई, फिर इसके आधे से ज्यादा खोल के एक आर्क यहाँ से और एक आर्क यहाँ से, ठीक है। देन यू हैव टू जॉइन पॉइंट बी टू दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो पॉइंट आ जाएगा, दिस विल बी
डी, डी। परपेंडिकुलर बन गया। हाँ जी बोलिए, बोलो बेटा किसको नहीं क्लियर हुआ? ओके चलिए लेट वी कंटिन्यू। अब आते हैं, ये होंगे हमारे दो स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप था आपका, फर्स्ट पार्ट था ड्रॉ ट्रायंगल, सेकंड पार्ट वाज फ्रॉम पॉइंट बी परपेंडिकुलर बीडी ऑन AC. Second part is done. Now the third part is we have to draw the circle through B, C and D. राइट हमने B, C और D से पास होता हुआ एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, अब B, C, D से पास होता हुआ एक सर्कल कैसे बनाएं? उसके लिए हमारे पास सेंटर होना चाहिए, राइट? सो आई डोंट हैव द सेंटर, कहाँ से लाऊं? बट हाँ एक चीज है, इन्होंने ये 90 डिग्री एंगल बोला है। ठीक है, अब B, C, D से पास होता हुआ देखो आपका जो सर्कल बनेगा वो किस तरह से बनेगा। मैं अभी सिर्फ वैसे ही ड्रॉ कर रही हूँ ना, अभी फिर हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते कंस्ट्रक्शन में। वो इस तरह से आपका सर्कल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बनेगा ना, राइट? अब इस सर्कल के अंदर ये देखो, ये डी पॉइंट इधर आया और ये एंगल कितने डिग्री का है आपका? एट पॉइंट यू हैव द एंगल 90 डिग्री। यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, एक ये सर्कल बना जो हम कह रहे हैं कि BCD से पास होगा। ये मेरा C होना चाहिए, इधर B होना चाहिए, इधर D होना चाहिए। अगर ये एंगल 90 डिग्री है, दैट मीन्स एंगल कब 90 डिग्री होता है? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ना वो अभी हम टेंजेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। आई डोंट हैव Angle in a semicircle. यस, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। दैट मीन्स ये जो है ये क्या होना चाहिए? डायमीटर। यस, इट मस्ट बी द डायमीटर। ये एंगल 90 डिग्री है, 90 मीन्स ये सेमी सर्कल होना चाहिए। ये सेमी सर्कल है, दैट मीन्स दिस मस्ट बी द डायमीटर। सो BC इज द डायमीटर इन दिस क्वेश्चन, राइट? इफ BC कितने सेंटीमीटर की थी? सॉरी 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। अगर BC 8 सेंटीमीटर है तो मेरा सेंटर कहाँ जाना चाहिए? 4 सेंटीमीटर बीच में। 4 सेंटीमीटर पर। 4 तो सेंटीमीटर। यहाँ से आप जहां पर भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा वहां पर आप पॉइंट ले लेंगे, O पॉइंट। ठीक है, नाउ विद 4 सेंटीमीटर रेडियस वी विल ड्रॉ द सर्कल, और वो सर्कल आपका कहां से पास हो जाएगा? दैट विल पास थ्रू B, C एंड D। ठीक है, ये आपका सर्कल बन जाएगा। थर्ड पार्ट डन। यहां तक हो रहा है क्लियर सबको? ओके चलिए, देन Yes, ma'am. last part is construct the tangents from A to this circle. A पॉइंट से ये जो सर्कल आया है इसके ऊपर मुझे टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। कैसे करूं? टेंजेंट्स तो आपने सबने बनानी सीख ली, कैसे करूं? How to draw the tangents to the circle? बोलो। एक सर्कल के ऊपर आपने टेंजेंट्स की है ना? We have already done 5 questions. इतना डर? फोन में थोड़ा आके मैंने आपको डांटना है या पीटना है? देखो कल तक तो आप जो कर रहे थे वो हम ये कर रहे थे, दैट इफ वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट। क्या करते थे जल्दी से बता दो, क्या करते थे? OA को ज्वाइन करते थे, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देते। बिल्कुल ठीक है, O को A से ज्वाइन करते थे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते तो थे। A होगा इसमें एक्सटर्नल पॉइंट। हाँ जी, जैसे जो ये फिगर हमने बनाया है, हाँ ये नहीं, उसमें A होगा, जो ट्रायंगल वाला फिगर उसमें A एक्सटर्नल पॉइंट है। हाँ, ये आपका सर्कल है। फ्रॉम पॉइंट A वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट्स। देखो तरीका OA को हमारा join यही करते होता था कि हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते थे, फिर हमारे पास मिड पॉइंट आता था, एंड देन विद मिड पॉइंट एज द सेंटर वी वर ड्रॉइंग द सर्कल। सर्कल कह लो या फिर हम सिर्फ आर्क लगा रहे थे। फ्रॉम दिस पॉइंट वी वर टेकिंग 2 आर्क्स एंड देन फ्रॉम दीज पॉइंट्स वी वर गेटिंग 2 टेंजेंट्स। ठीक है, बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वी आर गिवन 1 टेंजेंट, अब उस टेंजेंट को फाइंड आउट करना है। देखो ये A पॉइंट है, ये सर्कल को B पॉइंट पर टच कर रहा है, ये सेंटर से ये रेडियस भी आ रही है और ये एंगल 90 डिग्री भी है। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या हो गई?
ये आपकी क्या बन गई? दैट मीन्स दिस इज द tangent टेंजेंट। tangent ठीक है, ये हो गई आपकी टेंजेंट। अगर आपके पास एक टेंजेंट आ गई है, कैन यू ड्रॉ द अदर टेंजेंट? कितने सेंटीमीटर की है ये टेंजेंट? 6 सेंटीमीटर की है। तो दूसरी भी कितने सेंटीमीटर की होगी? 6 6 सेंटीमीटर की सेंटीमीटर होगी। तो यू हैव टू पुट योर कंपास एट पॉइंट ए, उसको 6 सेंटीमीटर खोलेंगे और 6 सेंटीमीटर की एक और आर्क हम सर्कल को कट होती हुई लगा देंगे, राइट? और ये जो पॉइंट आएगा, दिस पॉइंट विल बी जॉइंड टू पॉइंट ए। नाउ यू विल गेट ए बी सी और डी भी हो गया आपका। लेट दिस पॉइंट इज ई। नाउ यू हैव टू टेंजेंट्स ए बी एंड ए ई। ए। Clear? Question is clear to all? अब एक बारी जिसको नहीं समझ में आया है, you will watch the video again. ठीक है, और इसको साथ साथ ड्रॉ कर लेना, राइट? 4 पार्ट्स थे, आपने जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन होगा, you have to follow and you have to draw the construction. Now the last question of the exercise of the chapter, the last question is we have to draw a circle with the help of the bangle. बैंगल से आपने सर्कल ड्रॉ करना है। दैट मीन्स ये आपको सर्कल का सेंटर नहीं देना चाह रहे हैं, ठीक है? सेंटर यू विल हैव टू फाइंड आउट योरसेल्फ। देन दे आर सेइंग टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, एनी पॉइंट, यू नो मेजरमेंट इज गिवन टू यू कि आपने वो पॉइंट कितनी दूर लेना है। यू जस्ट हैव टू टेक अ पॉइंट एंड देन यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। यू हैव टू टेक अ बैंगल, बैंगल से आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है? फ्रॉम अ पॉइंट, ये पॉइंट मैंने ले लिया बाहर। फ्रॉम दिस पॉइंट आई हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट्स टू दिस सर्कल, ठीक है? अब मैं पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स जो ड्रॉ कर दूं, अगर मेरे पास सेंटर हो तो, ठीक है? आपको इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? सेंटर। अब मुझे सेंटर फाइंड आउट करने का मेथड बता दो। वी हैव ऑलरेडी डन इन 9th क्लास, इफ यू रिमेंबर। How to find out the center? बोलो। भाविका, लक्ष्य इज टेलिंग। अंश आप बता रहे हो? यस कुछ मैम, तो कोर्स बना के बाइसेक्ट कर दो। हाँ जी बिल्कुल ठीक कोर्स है। बना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स वो कौन सी एक वाज पॉइंट देयर इन क्लास? मैम कोड्स बना के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। Yes, you will draw the chords. आपने 9th क्लास में भी किया था। When we have to find out the center of the circle, we will take 2 chords. Any chord you have to join any 2 points. ठीक है, वो उसकी chord बन जाएगी। And I am taking another chord CD. अब आप सेंटर फाइंड आउट करने के लिए इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लोगे, इसका तो जहाँ पे वो परपेंडिकुलर join बाइसेक्टर करेंगे। लोगे। The point of intersection of perpendicular bisectors will be the center of the circle. More than half arcs, एक ऊपर लगाएंगे और एक नीचे लगाएंगे। With the same opening, we will draw 2 more arcs. ये आपकी 2 और आ गई, और जब आप इसको ज्वाइन करेंगे, you will get the perpendicular bisector, ठीक है? Similarly, you have to find out the perpendicular bisector of this line. आधे से ज्यादा आपने खोली, ये आर्क इस तरह से लगाई, 2 आर्क आपने इधर से लगाई, and then you are getting the point of intersection of these two. मेरा थोड़ा सा साइड पे चला गया। You will get your point of intersection exactly at the center. तो ये जो पॉइंट आ जाएगा, ये आपका O पॉइंट आ जाएगा। इसके आगे आपका वही प्रोसीजर फॉलो होगा। You will join point O to P, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका। O और P से more than half of the line OP. You have to draw 2 arcs from point P and 2 arcs from point O. The point of intersections will be joined. Now you will get the point of midpoint of this line OP. From this midpoint, itni compass खोलेंगे, half of OP. You have to draw 2 arcs. ये आपकी 2 arc आ गई। Then you have to join points P to these 2 points of contact. Let this is X, this is Y. Now you have PX and PY, the 2 tangents of this circle.
ठीक है, अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की, और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर आपके एग्जाम में आते हैं, that you have to draw the steps of construction, तो write, you have to write the steps of construction, then only you will write, otherwise there is no need to write the steps of construction. और steps of construction में भी जैसे जैसे आप ड्रॉ करते जाएंगे आप उसको वैसे वैसे लिखते जाएंगे, ठीक है। उसमें एज सच आपके मैथ्स है तो मैथ्स में आपके इतने मार्क्स नहीं कटते, आप जो लिख रहे हैं, जो ड्रॉ कर रहे हैं, सिर्फ वैसे ही आपने लिखते जाना है, you will get full marks for your steps of construction. Clear, ma'am, this question? Right, Ansh. Ansh is saying ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता क्योंकि हर किसी के पास बेंगल नहीं हो सकती है, ठीक है, बट सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था दैट यू विल फाइंड आउट द सेंटर। चलिए, और उसके बाद हमने एक कल हमारा पॉइंट रह गया था, सिर्फ वही करते हैं। देन हमने कहा था कि हमने एक सर्कल लिया, ये पॉइंट हमारा बाहर से है, इसको हमने सेंटर से ज्वाइन किया, ठीक है। इसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, राइट, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया था। फिर हमने कहा था कि हमने इतनी खोली और यहाँ पे आर्क लगाई। आर्क तो एक्चुअली नहीं होती है, वो आपका सर्कल ही होता है, राइट, ये, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि ये हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गए, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमारे कैसे आए थे, देखो, अगर आप इन पॉइंट्स को E, O, this is A and this is B, if you join the points, वही कॉन्सेप्ट आपका यूज होना है जो अभी आपने किया है। अगर आप इनको ज्वाइन करते हो तो ये एंगल आपका कितने डिग्री का बन रहा है? 90. क्यों? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 90 क्यों? एंगल इन अ सेमी पॉइंट ऑफ पता ही नहीं है, हम तो बाद में कह रहे हैं ना एंगल कि इन अ सेमी हाँ जी, हाँ जी, एंगल्स इन द सेमी एंगल इन अ सेमी ओके, ये आपका क्या बन रहा है? सेमी सर्कल बन रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने ये सेंटर लिया है और इसके इक्वल खोला था, ये हमारा इस तरह से सर्कल बना है, तो ये हमारा सेमी सर्कल हो गया। सेमी सर्कल के अंदर एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री बनता है। अगर ये 90 डिग्री एंगल है तो ये हमारी क्या हो गई? टेंजेंट हो गई, राइट। सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि हम जब इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, मतलब यहाँ से दो आर्क लगाएंगे, उनको इससे ज्वाइन करेंगे तो वो हमारी क्या आ जाएंगी? टेंजेंट्स आ जाएंगी। दिस इज द जस्टिफिकेशन। ये आपके एग्जाम में नहीं आती है, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, राइट। This chapter is completed and from the next class we are going to start new chapter, ठीक है, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। So if anyone has any doubt you may discuss, otherwise we are ending the class.